This is the second video from the chapter number 2, class 12th biology, human reproduction. The content of the chapter I will cover in this video, that will be the female reproductive system. Female reproductive system. The parts of the female reproductive system, there are basically main 4 parts: a pair of ovaries, a pair of oviduct, a uterus. Uterus का part होता है cervix. The lower part of the cervix is vagina and external genitalia. So the location or the position of the female reproductive system in the pelvic region, if you see this diagram, that is the backbone, ये पीछे का portion है, and that is the lower leg portion, that जहाँ से leg start होता है. This is the position of the female reproductive system. ये pelvic bone कहलाता है. This is the position of the uterus. और इसके जो आसपास की स्पेस है वो क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक अगर बॉक्स की तरह आप इमेजिन करें तो एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन प्लेस. सो यहाँ पे जो पास में है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, बट दिस इज द पोजीशन ऑफ द फीमेल reproductive system. If you see here, that is a ovary, यहाँ से oviduct है, and the uterus, that is the labeling is there. So these are the parts which are shown in this diagram. This is the ovaries. These are the ovaries, a pair of ovaries, a pair of oviduct which are known as the fallopian tube. This is the uterus. Lower part of the uterus is known as the cervix, and that is the vagina, and that is the external genitalia. These are the parts of the female reproductive system. Female reproductive system along with the pair of mammary glands. In the females, there are a pair of mammary glands. When the newborn baby is born, then the lactation, जो milk ejection होता है वो mammary gland से होता है. They are integrated structurally and functionally. ये जो सिर्फ इसमें अगर हम कहें कि ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होते हैं तो सिर्फ ये अलग एक पार्ट नहीं है इसका, मतलब देयर आर मेनी अदर प्रोसेसेस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं. जैसे यहाँ से ओवा रिलीज होता है, द प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन. ओवा रिलीज होकर वो मिड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में जाता है. अगर स्पर्म्स डिस्चार्ज रिलीज यहाँ पर होते हैं और उसका उससे इनकाउंटर होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन. फिर ये यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसे हम पहले जाइगोट फिर एम्ब्रियो कहते हैं, वो यहाँ पे ट्रेवल करता है, यूट्रस में वो एम्बेड हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है. दैट विल कॉल इट एज अ इम्प्लांटेशन. सो द थर्ड वन विल बी द इम्प्लांटेशन एंड दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी. So during the pregnancy, the cervix, that is the lower portion of the uterus, that is closed, and then the birth of the child takes place, and the child care. For the child care only, there is a need for the mammary gland जहाँ से milk secretion होता है. So here, if you will see, these all are the parts of the female reproductive system. Already हम इन parts को study करेंगे एक एक करके, और they along with this mammary gland, तो दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं. ये पूरी प्रोसेसेस किन किन प्रोसेसेस के लिए सपोर्ट करते हैं? ये ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द मेमोरी ग्लैंड. नाउ वन बाय वन हम जितने भी पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसको स्टडी करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज. अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसकी पोजीशन क्या है? वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. जैसे टेस्टीज बाहर होती है बॉडी के एब्डोमेन के, बट ओवरी की जो पोजीशन है वो अंदर है बॉडी के. ये एक डायग्राम पिक्चर डाला हुआ है, ये पेल्विक रीजन कहलाता है, राइट? पेल्विक गर्डल्स कहलाते हैं. ये जो पोजीशन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पोजीशन है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोअर पोर्शन में, if you will see that this is a lower portion they have shown here, this is the location of the female reproductive organ. So that is connected to the pelvic wall. यहाँ पे इसको कनेक्शन जो है pelvic wall का भी कनेक्शन और यूट्रस से भी कनेक्शन है. तो now we come to the ovary. ओवरी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? लोअर एब्डोमेन में है. एक साइड पे ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू. ये मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, लिगामेंट्स जो टिश्यूज होते हैं, ये एक तरफ उससे कनेक्टेड है
और दूसरी साइड पे ये यूट्रस है, दिस इज द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो एक साइड पे ये वॉल ऑफ यूट्रस से कनेक्टेड है और दूसरी साइड ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है। तो ये जो ओवरी है, ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, they have just shown ये different type of ligaments। कहीं पर लिखा हुआ है the ovarian ligament, round ligament, broad ligament। So these are the फाइबर्स। लिगामेंट्स जो है इसको अपनी जगह पे स्टेबल रखते हैं, और दूसरी साइड पे ये कहां से कनेक्ट होता है, यूट्रस से कनेक्ट होता है। द साइज ऑफ द ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, दिस इज द साइज ऑफ द ओवरी। अब बेसिक फंक्शन ओवरी से क्या है, जैसे टेस्टिस के भी बेसिक फंक्शन क्या थे, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। यहाँ पर ओवरी की भी बेसिक फंक्शन यही है, प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट, ओवा और ओवम, एंड प्रोडक्शन ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स। कौन से मेन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब प्रेगनेंसी होती है और यूट्रस में जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो कई और भी हार्मोन्स का सिक्रीशन ओवरी करते हैं। बट बेसिक हार्मोन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यू हैव टू मेंशन estrogen as well as the progesterone, right? So that is a function of the ovary, and that is how the ovary is positioned, that is given here. Now when we see the sectional view of ovary, नॉर्मली हम इसको, इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम जब हम गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तो हम इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। बट इस डायग्राम में जो लेबलिंग्स अभी मैं आपको बता रही हूँ, दीज लेबलिंग्स आर नॉट देयर। तो इफ वी विल कट द सेक्शन, फिर से इफ आई विल टेल यू, हम इसको इस तरह से कट नहीं करेंगे, ये हम ट्रांसफर सेक्शन इसका नहीं बनाएंगे। ट्रांसफर सेक्शन हम कभी भी नहीं देख सकते, इसको हमेशा हम लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम ओवरी का देखते हैं, तो ओवरी की जो ये वाली आउटर जो लेयर होती है, एक आउटर लेयर है, और ये जितने भी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, जहां जहां फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, एक ये वाला जोन है और एक ये बीच वाला जोन है, राइट? तो एक तो ये आउटर लेयर हो जाएगी, जो आउटर लेयर हो जाएगी वो एपिथेलियल टिश्यूज की है। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल्स, जो एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स है वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं। These are the cuboidal cells, cube shaped cells होते हैं जिसकी ये लेयर बनी होती है। So that is a layer which is made up of epithelial tissues. Then the middle portion is known as the medulla. It contains the neurovascular structure. ये वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है, राइट? और जो बाहर वाला पोर्शन है जो कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसमें ये ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, these all follicles are present. ये पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स। So each ovary is covered by the epithelial tissue. What type of the cells are there? They are the cuboidal cells. It encloses the ovarian stroma. तो ये पूरा का पूरा जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पेरिफेरल पार्ट होता है वो स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है, दे कंटेन्स द ओवेरियन फॉलिकल्स, और जो इनर पार्ट होता है वो मेडुला पार्ट होता है, एंड दैट कंटेन्स द, as it is written here, neurovascular structure. That is the structure of the ovary. So the second part of the female reproductive system, they are the female accessory ducts. तो यहाँ पर जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उसी के अंदर यूट्रस है, उसी के अंदर वेजाइना है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। वहां पर हम लोगों ने जब मेल पढ़ा था, वहां पर 4 डक्ट्स को हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अंडर द हेडिंग फीमेल एसेसरी डक्ट्स। सो दैट नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन इज द फैलोपियन ट्यूब। इफ यू सी दिस ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी से जो कनेक्टेड पार्ट है, ये वाला जहां पे कर्सर जा रहा है, ये पार्ट एक साइड पे ओवरी से कनेक्टेड है और दूसरी साइड पे यूट्रस से कनेक्टेड है। ये पूरा जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये फैलोपियन ट्यूब है, जिसको कि हम ओविडक्ट भी कहते हैं, राइट? इसका नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस में भी एक ये पार्ट है, ये बॉडी पार्ट हो जाता है, राइट? और ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस है, ये सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अलग से पार्ट्स नहीं है, ये एक जो यूट्रस है उसका लोअर पार्ट है, ठीक है? एंड उसके नीचे जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द वेजाइना। सो दैट कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। Now we come to the fallopian tube, that is the first one. What is the shape of the fallopian tube? They are hollow and they are muscular tubes.
एंड ईच वन ऑफ दैट इज क्योंकि पेयर्ड है, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स है, ये पेयर्ड ट्यूब्स है, दोनों ओवरी से निकलती हैं, तो लेंथ ऑफ दिस ट्यूब्स दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ से लेकर वो यहाँ जब जाती है, दिस इज द लेंथ विच इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। पोजिशन बॉडी में क्या है, एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस, मतलब ये एक साइड से ओवरी से ज्वाइंट रहती है और दूसरे साइड से यूट्रस पे ज्वाइंट रहती है। दिस इज द पोजिशन ऑफ द ओविडक्ट। अब ये जो ओविडक्ट है इसके 3 पार्ट्स हैं, लेंथ कितनी है 10 to 12 सेंटीमीटर। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, एक इनफेंडेबुलम है, ये वो पार्ट है, ये फिम्ब्री जो है ये इसका एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, इनफेंडेबुलम का एक्सटेंशन है, ये पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, इनफेंडेबुलम का। दूसरा पार्ट है एम्पुला और तीसरा पार्ट है इस्थमस। जो इस्थमस पार्ट है ये यूट्रस को ज्वाइन करता है और जो इनफंडेबुलम पार्ट है ये किसको ज्वाइन करता है, फिम्बरी को ज्वाइन करता है, राइट। तो 3 पार्ट्स है, इनफंडेबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। सो विच पार्ट ज्वाइंस द ओवरी, इनफंडेबुलम। फिम्बरी इज द एक्सटेंशन ऑफ द इनफंडेबुलम। फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये क्या फंक्शन होता है, कलेक्ट करते हैं, किसको, ओवा को कलेक्ट करते हैं जब ये रिलीज होता है। बीच वाला जो पोर्शन होता है ये एम्पुला कहलाता है, इस्थमस जो पोर्शन है जो यूट्रस में किस साइड पर जाता है। So we can see the function of these 3 parts. Infundibulum is funnel-like portion of the fallopian tube. It is close to the ovary. Edges of infundibulum, they have the finger-like projections. We call it as a fimbri. ये है fimbri. Infundibulum का extension क्या है, fimbri. Fimbri help in collection of ovum after the ovulation. Ovulation का क्या मतलब हुआ, when egg is released. कहाँ से release हुआ, ovary से release हुआ, उसे कहाँ पे travel करना है, oviduct में travel करना है। तो ओवरी से जब ओविडक्ट में आता है तो ऑब्वियसली उसका जो मुंह जैसे होता है दैट शुड बी लाइक दिस, तो ये इसको रिसीव करता है फिम्बरी एंड इट इज अटैच्ड विद द ओवरी। तो सेकंड है, दिस इज द पोर्शन व्हिच इज नोन एज द एम्पुला, मेजर चैनल इन द fallopian tube located in between the infundibulum and the isthmus. ये isthmus थर्ड पार्ट है, infundibulum फर्स्ट पार्ट है और इसके बीच का पार्ट क्या है, एम्पुला। कई बार क्वेश्चन आता है यू हैव टू नेम द पार्ट्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, कई बार नेम आता है कि यू हैव टू नेम द पार्ट फ्रॉम यूट्रस टू ओवरी, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द fallopian tube। यूट्रस टू ओवरी तो इस्थमस, एम्पुला एंड फंडिबुलम आ जाएगा, ओवरी टू यूट्रस क्या आ जाएगा, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन दिस 2 पार्ट्स। फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो ज्यादातर फ्यूजन ऑफ द गैमीट, इसका मतलब क्या है कि जो मेल गैमीट है वो वेजाइना में डिस्चार्ज होता है, रिलीज होता है एंड देन यूट्रस से ट्रेवल करता हुआ इस्थमस को क्रॉस करता हुआ इट कम्स टू द एम्पुला। इफ द एग इज प्रेजेंट हियर द फ्यूजन विल टेक प्लेस हियर। सो मोस्टली यहाँ पर फ्यूजन ऑफ द गैमीट होता है। Isthmus is a tiny channel about connect the ampulla and the portion of fallopian tube which is closest to the यूट्रस, यूट्रस के पास वाला है। अब जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो एम्पुला से ट्यूब में ट्रेवल करता है थ्रू द इस्थमस, इट ट्रेवल्स इन द यूट्रस। तो फंक्शन जो है, छोटा पार्ट है ये वाला इस्थमस, इस्थमस जो fallopian ट्यूब का है एंड इट इज अटैच्ड टू द यूट्रस। नाउ द सेकंड पार्ट इज यूट्रस, राइट। Uterus is like an inverted pear. This is the shape of the uterus supported by ligaments attached to the pelvic wall. अब इतना बड़ा जो पार्ट है ये इसलिए दिखाया है डायग्राम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली टू शो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। दिस इज द पोजीशन ऑफ द यूट्रस, ये पोजीशन है, दिस इज रिटन हियर बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब बॉडी ऑफ यूट्रस, क्योंकि ये जो पोर्शन है, जो यहाँ वाला पोर्शन है, ये क्या है, वेजाइना का पोर्शन है और ये भी लोअर पोर्शन है बॉडी का, फीमेल बॉडी का लोअर पोर्शन है फ्रॉम द वेजाइना। ये सर्विक्स है, दिस इज द सर्विक्स, सर्विक्स इज द लोअर पार्ट। तो एक्चुअली अगर बॉडी में इसकी पोजीशन देखें तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ये यूरिनरी ब्लैडर है, अभी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था इसको, and that is the uterus. So different part of the female reproductive system that is shown here and this is the uterus. ये single part है, जैसे fallopian tube हमने देखा था, that is a pair of fallopian tube. Ovary भी there is a pair of ovary. ये कहाँ पे open होता है, vagina में, through a small part we call it as a cervix. Cervix uterus का part है जो कि narrow हो जाता है नीचे आके, दिस इज द यूट्रस, ये नैरो जो हो जाता है ये सर्विक्स कहलाता है और सर्विक्स इज द, और ये जो सर्विक्स है ये ओपन होता है वेजाइना में। अब कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल एंड अलोंग विद द वेजाइना इट
फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब जो बेबी का डेवलपमेंट होता है फीटस का वो यूट्रस में होता है, एंड व्हेन द चाइल्ड पार्टीशन होता है, व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट, तो वो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये बर्थ कैनाल कहलाता है, बिकॉज द चाइल्ड कम्स आउट थ्रू द फ्रॉम द सर्विकल कैनाल, सर्विक्स को क्रॉस करता हुआ वेजाइना के थ्रू होता हुआ इट कम्स आउट, राइट। सो ये वाली कब बर्थ कैनाल कहलाती है, जब यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, द चाइल्ड द फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है एंड द चाइल्ड बर्थ होता है, उस टाइम पर ये बर्थ कैनाल कहलाता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी we can call them with these names only. It is also named as womb. क्यों? जब प्रेगनेंसी होती है then only the uterus is known as the womb also. Without the pregnancy हम उसको uterus कॉल करते हैं, otherwise that will be known as the womb only. तो normally हमें ये structure को study करना है. So हमें ये study करना है. अब जैसे हमने 3 parts fallopian tube में लिया था, यहाँ पर भी हम 3 parts इसके layers को पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार यूट्रस का स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। जो इसके ऊपर वाला पोर्शन होता है यूट्रस का, ये फंडस कहलाता है, ये जो पोर्शन होता है ये बॉडी कहलाता है, और लोअर पोर्शन इसका सर्विक्स कहलाता है। तो ये पोर्शन सर्विक्स है और ये पोर्शन इसका ऊपर का फंडस है। अच्छा, ये क्या है? यूट्रस की कैविटी है जहाँ पे चाइल्ड इज डेवलप्ड। अब इसको ये कैविटी के बाहर का ये जो बॉडी का पार्ट है, ठीक है, बॉडी की इसमें लेबलिंग नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस डायग्राम। ये जो बॉडी का पार्ट है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, और ये 3 लेयर्स की तीनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली सेकंड और थर्ड लेयर की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम है, और बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम। बाहर की लेयर क्या है? पेरीमेट्रियम, बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम, थर्ड वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो दीज आर द 3 लेयर्स। कहाँ पे ये लेयर्स है? बॉडी पार्ट जो है, और जो सराउंड किसको करती है? यूट्रीन कैविटी, यूट्रस की कैविटी को करती है। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो थिक वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स। थिक वॉल ये भी है, बट यहाँ पर जो बॉडी पार्ट है इसकी 3 लेयर्स है। The perimetrium is the outer serous layer of uterus made up of epithelial cells. Protection दे रहा है इसको. Myometrium is the middle one, thickest layer, and uterus wall made up of smooth muscles. Smooth muscles की क्या quality होती है? आपने मस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे, स्ट्रेटेड मसल्स, इसमें हमने स्मूथ मसल्स पढ़ा था। सो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह यहाँ पे इजीली होता है। एंडोमेट्रियम इज अ इनर मोस्ट लेयर, जो लास्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल एंड मेक द सिक्रीशन। ये ग्लैंडुलर सेल की बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन ये निकालते हैं, मतलब कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं। अब क्या सिक्रीट करते हैं? जो एंडोमेट्रियम होती है ये अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है 5 डेज, 3 to 5 डेज में, उसमें थिकनिंग होती है। किसकी थिकनिंग होती है? एंडोमेट्रियम की, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है, ये सबसे अंदर की लेयर है यूट्रस की, और यहीं पर जो एम्ब्रियो अपने आप को अटैच करता है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है, तो ये यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा। तो प्लेसेंटा बनने के लिए ये थिकनिंग कहाँ पर होती है? ये जो इसमें थिकनिंग शो भी किया हुआ है ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है, मायोमेट्रियम की नहीं है। मायोमेट्रियम डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रेक्शन, मैंने कहा था ना स्मूथ मसल्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे मायोमेट्रियम का काम है। और पेरीमेट्रियम का क्या काम है? लुब्रिकेट और फ्रिक्शन को इसको कम करता है। जब यहाँ पे जो फीटस डेवलप हो रहा होता है तो इसको प्रोटेक्ट करता है वहां पर, मतलब इसकी लेयर्स जो सेल्स हैं फ्रिक्शन को कम करता है। लेकिन जो शेडिंग ऑफ द मायोमेट्रियम सेल्स की होती है, एंड देन क्योंकि ये वाली जो सेल्स हैं ये क्या होती है? अपने आप को थिकन करते हैं ब्लड वेसल से, सो दैट अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, अगर यहाँ पर एम्ब्रियो अटैच होगा ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, तो उसको प्लेसेंटा ब्लड वेसल से ये होते हैं, बिकॉज दैट इज अ लिविंग वन। सो शेडिंग ऑफ द ब्लड जो होती है उस टाइम पे, फंक्शनल लेयर का क्या मतलब है? नॉर्मली ये नहीं होता। फंक्शनल लेयर का मतलब है कि जब यहाँ पर थिकन हो जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पर इसकी शेडिंग से ही ब्लीडिंग होती है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस। The last portion is the female genital, external genitalia. इसमें जो बुक है उसमें 5 पार्ट्स को इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में कई बार पूछते हैं, what are the 5 parts of the female genitalia, external genitalia, that is known as the
mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, as well as the clitoris. These are the 5 parts. So these all are the labelings. This is the mons pubis, this is the labia majora, inner side of the labia minora, this is the hymen. Hymen की labeling यहाँ पर है. This is the hymen. This portion is known as the hymen, and this portion is known as the clitoris. So mons pubis is a cushion of fatty tissues covered by the skin and pubic hair. This is the portion. Labia majora, that is the fleshy folds of the tissue, extends down from the mons pubis, surrounds the vaginal opening. This opening is the vaginal opening. So labia majora flap like structure है जो इसको cover करता है. Minora is the paired folded structure. इसके अंदर के भी paired दोनों साइड पर minora भी होता है जो भी इसको vaginal opening को cover करता है. It is a membrane which covers the opening of the vaginal partially. वेजाइना की जो ये ओपनिंग है हाइमेन इसको पार्शियली कवर करता है. एंड क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोसेस व्हिच लाइज अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग. यूरिथ्रा इज अ पार्ट ऑफ द दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये इसका जो मॉन प्यूबिस के नीचे वाला पार्ट है, ये जो क्लिटोरिस है वो यूरिथ्रा को पार्शियली इसको ये कवर करता है. तो दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल organ in the females. Now these are the 2 diagrams which are given in the NCERT. This is the diagrammatic sectional view of female pelvis. ये position show किया गया. This is the backbone and this is the urinary bladder. ठीक है, urinary bladder, and this is the position of the uterus and this is the position of the vagina. तो ये यहाँ पर this is the ovary and the fallopian tube. तो ये यहाँ पे position को show किया गया है with reference to the pelvic region of the body. और दूसरा ये female reproductive organ का है. यहाँ पर इन्होंने 4 parts को तो show किया हुआ ही है. कौन कौन से? A pair of ovary, a pair of oviduct. यहाँ पे तीनों parts oviduct के दिखाए गए हैं. पेयर ऑफ सिंगल यूट्रस. यहाँ पे लेयर्स जो बॉडी होती है, यहाँ पे तीनों लेयर्स का नेम दिया हुआ है. ठीक है, ये यूट्रीन कैविटी कहलाता है. लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस सर्विक्स कहलाता है. ये ऊपर वाला फंडस कहलाता है. देखो यूट्रीन फंडस लिखा हुआ है. ये पोर्शन किसका है? ये यूट्रस का पोर्शन है. अभी आपको बताया था ना, यूट्रस फंडस हो गया, यूट्रस बॉडी हो गया और सर्विक्स हो गया. ये यूट्रस के पोर्शन है. तो जो बॉडी वाला होता है उसकी 3 लेयर्स होती है. इनर मोस्ट लेयर इज एंड्रोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम. एंड दिस इज द सर्विकल कैनाल जो बर्थ कैनाल कहलाती है. कब कहलाती है? एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. और दिस इज द लास्ट पोर्शन विच इज नोन एज द वेजाइना. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा, कई बार आप देखो बोर्ड में क्या होता है, एक तो आपको जब पढ़ते हो तो उसमें लिखता है रीड्रॉ द डायग्राम. कई बार डायग्राम उसमें ड्रॉ रहता है. ठीक है, और फिर उसमें वर्ड आता है रीड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल इट. तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ना, उसकी फ्रेमिंग क्या है क्वेश्चन की, आपको ड्रॉ करना. और कई बार डायग्राम दिया होता है और आपको लगता है कि आपने सिर्फ लेबलिंग करनी होती है. नहीं, तो उसमें कई बार लेबलिंग पूछते हैं कि यू हैव टू लेबल ओनली द पार्ट्स ऑफ यूट्रस. तो यूट्रस के पार्ट में आप क्या क्या करोगे? आप सर्विक्स करोगे लेबल, सर्विकल कैनाल को मत करना. आप ये वाले पोर्शन को करना, आप यूट्रीन कैविटी को करना, यूट्रीन फंडस को करना, ये कहा जाएगा. अगर यू हैव टू लेबल द पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब तो ये करोगे. ओवरी का ये, इसमें एफिम्बरी भी लीजिएगा आप. 4 फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को आ जाएगा. यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ओवरी का आ जाएगा. तो समटाइम्स दे जस्ट गिव यू कि आप ओवरी का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए और ये पोर्शन को आप यहाँ पे लेबल करिए. नाउ यहाँ पर एक कंपैरिजन है बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दोनों डायग्राम्स एनसीईआरटी के हैं. तो दोनों की जो पोजीशन है वो पेल्विक रीजन की है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस मैंने दोनों प्रेजेंटेशंस में ये दिया था. पोजीशन जरूर बताए पूछते हैं ये लोग कि किस पोजीशन पे ये दोनों सिस्टम्स प्रेजेंट है. दोनों की पोजीशंस जो है पेल्विक रीजन की है. बट इस दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, इसके सारे ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है. बट यहाँ पे ऑल द अदर ऑर्गन्स आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस between the two. Sometimes they can be 1 or 2 marker asked in that also, right? Difference hoga, that we'll take later. The next part of this video about the mammary glands. The diagram is from the NCERT. बड़ा सिंपल सा डायग्राम है और सब कुछ इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा. बट आपको एक चीज देखना कि आप ना लेबलिंग को आप इस तरह से लर्न करना. जैसे मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, उसके बाद एल्वियोलस के बाद आ जाएगा मेमोरी टिब्यूल, उसकी लेबलिंग नहीं है. फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल्स, राइट. अगर आप ये लेबलिंग याद कर लोगे तो जितने भी ये पॉइंटर्स हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो 5 पॉइंटर्स हैं, ये आपको लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लर्न करते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ बीच में एक चीज मिसिंग है.
एल्वियोल के बाद जो है ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो है, ये वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो यह मेमोरी ट्यूब्यूल की लेबलिंग मैं यहाँ पर आपको कर दूंगी, तो आप इसको कर सकते हो. नाउ दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स. अगेन देयर इज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, वी कॉल इट एज अ ब्रेस्ट, एंड दे कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यूज. अब ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैटी टिश्यूज की यहाँ लेबलिंग नहीं थी, तो आई हैव जस्ट टेकन दिस डायग्राम. ये जो ये वाला पोर्शन है ये ग्लैंडुलर टिश्यूज और फैटी टिश्यूज, ये जो येलो वाला ये फैटी टिश्यूज है और ये इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज है. ठीक है, अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है ना, एल्वुलस और लोब्स की यहाँ पर लेबलिंग है, तो टू शो यू दिस ओनली दैट डायग्राम इज टेकन, अदरवाइज आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है. So now these glandular tissues divided into the memory lobes and lobes are made up of alveolus. तो ये जो है ये क्या है, memory lobes है. These are the memory lobes and memory lobes are have the memory alveolus. तो कितने memory lobes है? 15 to 20 memory lobes है. कहाँ पर होते हैं ये? देखो ये वाला जो डायग्राम है ये memory lobes है. This is 1, this is 2, this is 3. This type of the diagram we showing. तो glandular tissues में memory lobes होते हैं और इसका जो extension होता है they are known as the alveoli. ये जो extension है this type of the structures they are known as the alveoli. So they contains the glandular tissues and fatty tissues. The glandular tissues divided into the 15 to 20 memory lobes and each they have the group of alveoli. So here if you see this diagram, they are the glandular and the fatty tissue made up of these lobes and these are the alveoli. Now this alveoli open to the mammalian tubule. तो इसके बीच की जो स्पेस है ये वाली जो है ये मेमोरी ट्यूब्यूल की स्पेस है. ठीक है, किसकी स्पेस है ये? मेमोरी ट्यूब्यूल की स्पेस है. एंड मेमोरी ट्यूब्यूल ऑफ ईच ओपन टू द स्मॉल मेमोरी डक्ट. और हर जो ट्यूब्यूल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये किस में ओपन होता है? डक्ट में. अच्छा, अब देखो जब मिल्क सिक्रीशन होता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड पार्ट्यूशन हो जाता है, देन ओनली द मिल्क सिक्रीशन, द ये जो एंजाइम हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दे ऑल आर द पोर्शन जहां पे मिल्क इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज सिक्रेटेड. सो सेवरल मेमोरी डक्ट्स दे जॉइन द वाइडर पोर्शन. जो वाइडर पोर्शन होता है यहाँ पे नीचे आके ये एम्पुला कहलाता है. अब देखो ये डक्ट्स कहाँ से आ रही हैं? डक्ट्स ट्यूब्यूल्स से आ रही हैं. ट्यूब्यूल्स किसका एक्सटेंशन है? एल्वुलस का. और एल्वुलस किसका पार्ट है? मेमोरी लोब्स का. तो मेमोरी लोब्स में बहुत सारे मेमोरी एल्वुलाई हैं, उसका एक्सटेंशन है, उसमें ट्यूब्यूल्स है, उसमें जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स तो कैरी कर रही हैं. अब वो कैरी करके कहाँ पर दे रही है? मेमोरी एम्पुला पर. और जो मेमोरी एम्पुला है इट इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट जस्ट बिफोर द निपल वेयर द मिल्क इज रिलीज्ड. तो दिस इज द लेक्टिफेरस डक्ट. अब ये एम्पुला किसका कहाँ से कलेक्ट कर रही है? ये डक्ट सारे के सारा जो मिल्क है वो एम्पुला पे दे रही है और एम्पुला के थ्रू इट इज कमिंग टू द लेक्टिफेरस डक्ट एंड थ्रू द निपल द चाइल्ड सक्स द ब्लड. तो अगर आपको इसको लर्न करना है, इजीली लर्न करना है, तो इसको आप ML ले लो, फिर या MA ले लो या MT ले लो. ML M मतलब मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल. तो एक आप अगर सीक्वेंस लर्न करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसे रेडी हो जाएगा. राइट, तो next part, the summary of this chapter, what we have taken. This is the female reproductive system made up of a ovary. Ovary का function क्या है? Production of ova and the male, female hormones. A pair of fallopian tube, muscular tubes होती है, carries ovum from ovary to uterus. Then the uterus में it is known as womb, where the embryo grows. Endometrium the blood supply, implantation में यहाँ पर embryo अपने आप को attach करता है. Cervix, the neck of the uterus. From the vagina, the sperms are deposited in the vagina. Vulva last इसका part होता है. That is about the female reproductive system. और ये diagram है mammary glands का. तो mammary glands में what we have seen the glandular tissues से बाद glandular ducts to the tubules to the alveoli. So all these parts ये ज़्यादा glandular tissues को ज़्यादा highlight किया था मैंने. Glandular tissues and these are the glandular ducts. They are there and from where the milk is sucked by the child. So that's all in this video. If you like the video, please press the icon and subscribe the channel. Thank you. My third presentation will be on the gametogenesis. Thank you for watching.